GST Pune. He is natively from Latur. He has done his BE Mechanical from Walchand College of Engineering. He was a lecturer at MES College of Engineering from 1999 to 2002. In 2002, he joined Sales Tax Department as Assistant Commissioner at Mumbai and worked there in various roles. In his tenure from 2008 to 2011, he worked in a crucial investigation wing. In 2011, he was promoted as Deputy Commissioner at Pune. In 2017, when GST implementation was started, he conducted many workshops and awareness sessions throughout Pune district in order to trade union federation and dealer community. It is my immense pleasure that we have Mr. Vishal Sir with us today for this session. As we are ready to start, there are some instructions for all the participants. It's a humble request to all the participants to please mute themselves during the session. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box and we'll also have the time for the questions at the end. Now, without further ado, I would like to request Mr. Vishal Sir to take over. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Just give a moment. I will present my presentation. Can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes. First of all, I will thank you, the full MES college team, for inviting me for giving this session on the how to plan for startup, legal and ethical steps. Actually, I have worked in this college from 1999 to 2002. Means it was in founding year, foundation year for the college, and this for a continuous 3 years I was there. It was very wonderful years working there. I was in the mechanical engineering department teaching 3-4 subjects. I had a very good friends over in the college. Mitra sir, Adkar sir, Saugule sir. We had a very good time over there. And again, you are calling me, so it's an honor for me for inviting me for the discussion on this topic of the how to plan for startup, legal and ethical step. In today's session, actually, I'm trying to make aware you that what is startup. I think many of you know what is a startup, what are the legal things, what are the ethical things. But I will just reinforce this concept. Many of the things you might also be knowing already, but let us see, a few of you might not be knowing, few of you might be knowing, but let us see what are the things that we should know about the startup, what are the opportunities for all of us when we consider a startup. I will be using this mixed language. Somewhere I will use English, Hindi, or somewhere Marathi. The best possible way I will. Is it okay, sir? Iravar, sir? Okay, no problem. Yes, Yes. Yes. I think everyone will understand English and Hindi. So my intention here will be to give a better understanding of this what is startup. Because many of you might be thinking about your career, what to do and how to go ahead. So first, my objective for the today's session is हम लोग ये देखना चाहेंगे कि मैं ये let us see कि what is startup, what are the benefits of startup, ये प्रोसेस क्या होता है स्टार्टअप इनिशिएट करने के लिए, what are the innovation से कैसे स्टार्टअप बनते हैं, and few examples of this innovation. ये उसका एक और भी पर्पस जो है वो है क्रिएटिंग क्रिएटर्स. हम ये करना, the country overall, the government wants to create creators. What are the legal steps during this
throughout the process of this session, we will try to understand what are the legal steps that we should consider for the startup, what are the ethical steps, and what are the sources of funds, because funds are very important thing, because though you are having very good idea, if you are not having funds, then you cannot implement it, you cannot benefit people, you cannot benefit your customer, your client, and you yourself, because funds is also an very important part of the any business. सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज स्टार्टअप. स्टार्टअप और एक जनरल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है वो देखने की कोशिश करते हैं. कोई भी बिजनेस जो होता है वो हम लोग ये जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप जब बिजनेस होता है तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि वो समथिंग एक क्लाइंट को, तुम्हारे कस्टमर्स को आप यू प्रोवाइड समथिंग प्रोडक्ट, सम सर्विस और सम प्रोसेसेस, आप उनको हेल्प करते हो सो दैट your customer and clients get benefited and he will pay for that service, product or process. Startup is also a business, but for this for the purpose that we are looking today, the startup is having some different meaning, where business is there, the concept of business is there, but not in a conventional understanding that we know about the business. A startup is an entity registered not prior to 5 or 7 years. Previously it was 5 years, now it has made amendment for 7 years. And for biotechnology, the 10 years old entity hai, that is considered, that could be considered as a startup. Startup organization or startup entity will be having turnover less than 25 crores in the preceding year, or now the limit has been increased to 100 crores. The scheme of this government have been introduced in 2016 to give certain benefits to startup, so that innovation, development, deployment and commercialization of new product, process or services comes into the market, so that new startup, to give benefit to the entrepreneur. So this scheme has been launched by the central government. And one more thing, that entrepreneurship or that business should not be formed by splitting up of an reconstruction. कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्प्लिट करके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है तो उसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा. स्टार्टअप पॉलिसी अंडर द पॉलिसी ऑफ द स्टार्टअप, अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आप उसको स्टार्टअप बोल रहे हो तो उसको नहीं कहा जाएगा. द व्हाट आर द थिंग्स, मतलब देयर आर लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स after obtaining a certification is been given by the government. और one more thing जो भी है, startup cannot be an private proprietorship firm नहीं हो सकता है. It should be a private limited company, or it's an it could be a limited liability partnership or a partnership firm. This can be these three types of firms can be only a startup firms. This is a basic requirement. And one more thing, one more condition is that we have seen, it should work within some innovation, something new method of development, some new methods of process, or some new method of providing service to the client and customer should be there, so that in India or in our country, better and better services will be provided to the customer, and it will provide a better environment for the promotion of a business. There will be a good ease of doing business, and it will basically it will grow, it will help to the growth of a country. Let us see what is the process of an startup. I think this is okay, means are you understanding what is a startup? Yes, sir. Okay, yeah. What is startup? Many a times you and me are having ideas. Consider an example of an
just it's a huge example. We can see the see the example of in Facebook. Facebook came with an idea so that people came on a social media, on a platform, on some platform. आप सब लोग जानते हैं फेसबुक एक एग्जांपल, जिसमें एक आइडिया, एक सिंपल आइडिया लिया गया कि लोगों को इंटरनेट की तरह एक आईटी एनवायरनमेंट को देके एक लोगों को एक साथ जोड़ा गया। लोगों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लगा, लोगों को अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलने का एक मौका मिला। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई, लेकिन बाद में बिजनेस के लिए, बाद में कुछ सोशल एक्टिविटी के लिए, बाद में फॉर मीटिंग पीपल, और अलग अलग पर्पस के साथ लोग वहां पे आते गए, जुड़ते गए। एंड फेसबुक हैज बिकम such an huge organization, you can say, such as you can say a big unicorn in the world, and everyone knows that Facebook. But ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक एग्जाम्पल इतना बड़ा होना चाहिए। देर आर मेनी थिंग्स। अगर कोई छोटी छोटी बातें भी अगर हम लेते हैं तो वो उसके साथ साथ जुड़ जाते। और एक छोटी सी बात जो रहती है, जो आज के डेट में कस्टमर्स को, क्लाइंट को वो तकलीफ होती है, उसकी वजह से अगर आप आइडेंटिफाई करते हो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कस्टमर्स को तकलीफ होती है, अगर वो जो है ना वो बेटर सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे कुछ कोई अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है जिसको आप मार्केट में ले जा सकते हो, तो ऐसे आइडिया के साथ बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आइडिया रहते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। द थिंग, अगर हम ओला या उबर का एग्जांपल लेते हैं, लोगों को जो टैक्सिंग सर्विस जो प्रीवियस बिफोर ओला उबर जो टैक्सिंग सर्विस अवेलेबल था, इट वाज जो जिस तरह से फेडअप हो गए थे लोगों को उसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद जो ओला और उबर के बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है जो टैक्सिंग सर्विस के लिए, आज मुझे कहीं पे जाना है तो जस्ट आई ओपन दैट ऐप, उसमें मैं, मुझे सपोज एयरपोर्ट जाना है तो मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, एंड मेनी टाइम्स 5-6 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स आई गेट द टैक्सी। एट द सेम टाइम आई गेट द क्या होगा उसका रेंट, क्या होगा, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, वो भी मुझे मिल जाता है। सी द आइडिया, एक स्मॉल आइडिया मिल जाता है वहाँ पे, और जिसकी वजह से वो स्मॉल आइडिया टैक्सिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो जो आइडिया आया, और उसके साथ साथ ही लोगों को सर्विस भी मिल जाती है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे टैक्सी जो जिसकी रहती है, यू माइट बी नोइंग, हर एक को ये शायद ये भी मालूम रहेगा कि उबर या ओला, उनके पास खुद की कोई भी टैक्सी नहीं रहती। जिनकी भी टैक्सी रहती है ओला और उबर में वो रजिस्टर्ड करते हैं, और जो कस्टमर रहते हैं वो ओला उबर एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म से वो मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो टैक्सी ओनर या टैक्सी ड्राइवर के पास चली जाती है, और मुझे वो वहाँ से वो टैक्सी प्रोवाइड करती है। ओला और उबेर जो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो क्लाइंट है और जो सेलर है, या तो फिर हम एक ब्रॉडर टर्म्स में ऐसा बोल सकते हैं, जो परचेसर है और वो जो सेलर है उनको साथ में मिलाया जाता है। द ओनली थिंग, एक छोटी सी चीज है, लेकिन उस कन्वीनियंस की वजह से there is, you can see there is a large difference in the life of an people. वैसे ही आप एग्जांपल और ले सकते हैं अमेजोन का। अमेजोन भी कोई, उनके पास खुद के कुछ प्रोडक्ट नहीं रहते हैं, बट दे आर इन अ रिटेलिंग बिजनेस। जो भी सेलर है वो अमेजोन पर रजिस्टर करते हैं, उनके जो कस्टमर है वो सर्च करते हैं उनको क्या चाहिए, वो सेलर रजिस्टर्ड करते हैं, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट दिखाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट उनको परचेज करने हैं वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। अमेजोन जस्ट प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेलर एंड परचेसर केम टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेलर गेट्स मार्केट, you can say, suppose throughout the India, throughout the country, the seller gets the market and purchaser gets the product from all over the India. So there is a win-win situation for both of the customer also and for seller also. ऐसे कुछ आइडियाज के साथ आते हैं। ये तो हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, छोटे छोटे हम लोकल लेवल पे भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज से जो बिजनेस करते हैं उससे भी बहुत हमारे लाइफ में फर्क पड़ता है। Recently I came across one simple grocery store in our locality.
उन्होंने क्या किया है, उनके ग्रोसरी स्टोर में एक जो चीज़ बेचते हैं, यूजुअली आज की डेट में हमें सुपरमार्केट या तो फिर बिग बाजार या डी मार्ट ऐसे बड़े सुपरमार्केट्स में जाके शॉपिंग करने की मेनी टाइम्स आपको हैबिट हो जाती है। हम लोग लिस्ट नहीं बना के जाते हैं वहाँ पे हमें क्या ग्रोसरी लेना है, वहाँ पे जस्ट जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या लेना है और लेते हैं। द थिंग इज दैट ग्रोसरी स्टोर इन आवर लोकेलिटी, उन्होंने इसी चीज़ को, इसी आइडिया को कैप्चर किया, या तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट आज की डेट में तो हम मार्केट में बिकॉज ऑफ द pandemic situation, people are not going into the market, people are not going into the supermarket. तो उन्होंने उसको ये चेंज किया, उन्होंने एक छोटी सी चीज़ की, उन्होंने एक छोटा सा एडवर्टाइज किया है कि हम हमारे जो ग्रोसरी स्टोर है, आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके आप हमारे प्रोडक्ट देखो और वहीं पे ऑर्डर दे दो। इनफैक्ट और उसकी वजह से क्या होता है, अगर मेरे पास लिस्ट नहीं तो भी मैं जब भी प्रोडक्ट देखता हूँ ग्रोसरी स्टोर में, अब मुझे अचानक से ध्यान में आ जाता है, अरे ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ये चीज़ घर पे नहीं है, मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ वही चीज़। उससे क्या होता है, जो मुझे चीज़ ज़रूरी है वो तो मैं परचेस कर ही पाता हूँ, ग्रोसरी स्टोर का भी जो है ना वो बिजनेस वो बढ़ जाता है। आज की डेट में मैंने कभी ये चीज़ देखा नहीं कि ग्रोसरी स्टोर या फिर कोई ऐसा वर्चुअल टूर कर रहे हैं उनके ग्रोसरी स्टोर का, बट आई थिंक इन नियर फ्यूचर देयर विल बी definitely virtual tour facility will be there on a different platform, and उसके साथ ही उनका जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है। तो इसी इनोवेटिव आइडिया के साथ अगर हम कुछ बिजनेस करना चालू करते हैं तो उसके साथ साथ हम ये सिर्फ आइडिया के साथ चलेगा क्या, सिर्फ आइडिया रहने से नहीं, उसके लिए कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा। किस तरह से आप प्लान बनोगे, वो आइडिया से कैसे कस्टमर बेनिफिट होगा, कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसकी सब प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको टीम वर्क चाहिए। एक जैसे पहले बोला गया है, ए प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज एन स्टार्टअप, उसके लिए एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड फर्म या पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। वो फर्म को आपको कोई टीम देखना पड़ेगा, को फाउंडर देखने पड़ेंगे, आपको टीम बनानी पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉयज देखने पड़ेंगे जिसके बारे में आपको जो भी आइडिया है आपके दिमाग में। आई थिंक everyone is having, many a times we are having idea, लेकिन उसको हम लोग implement नहीं कर पाते हैं as an business, हम लोग उसको implement नहीं कर पाते। तो उसको करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो नया अगर हम लोग देखते हैं, नया कोई पर्सन बिजनेस चालू कर रहा है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो इन्वेस्टमेंट उसको लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, रफली हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स वगैरह हम थोड़े सा देखते आएंगे। फिर ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहे हैं उसको थोड़ी स्टडी करेंगे, रिसोर्सेज करने पड़ेंगे एक स्टार्टअप बनाने के लिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, और जिसके लिए आपके मतलब कहाँ से आप परचेज कर सकते हो, कहाँ सेल कर सकते हो, विच आर द कस्टमर से वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से लोग जो है सेल करते हैं, आपको रॉ मटेरियल वगैरह अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक फाइनल स्ट्रैटेजी बना सकते हो, फिर प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर उसको लॉन्च करके आप उसको मार्केट में जा सकते हो। दिस इज अ बेसिक प्रोसेस इन अ स्टार्टअप। एक जनरलाइज प्रोसेस है, एक रफली, मैंने बहुत रफली बोला है कि स्टार्टअप का प्रोसेस कैसे होता है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, जब ये हम लोग ये स्टार्टअप का प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, प्रॉब्लम ऐसा होता है, मेनी टाइम्स ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं ना, बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आज लोगों के पास आइडिया तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एक स्टार्टअप के बारे में, एक या तो फिर नया बिजनेस के बारे में एक बुरी चीज़ ऐसी भी बोली जाती है कि मेनी ऑफ द बिजनेस, मोर देन 50, 60, 70% जो स्टार्टअप होते हैं या न्यू बिजनेस होते हैं, वो आइडिया तो अच्छी रहती है, बट वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से वो फॉल भी होता है, वो ग्रो भी नहीं होते हैं, वो बड़े बनते भी नहीं। लेकिन इसलिए हमें अच्छा आइडिया तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई आइडिया अगर है तो आपको
प्रोएक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, मेनी लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के बात करनी पड़ेंगी। आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि इस तरह से कोई सर्विस प्रोवाइडर है क्या जो आप सोचते हो, उनके बीच में कुछ कमियां हैं क्या, उसमें क्या फ्लॉज है जो कि आप बेटर कर सकते हैं। वो अगर आप लोगों से बात करोगे, खुद से बात होकर आपको बात करना पड़ेगा, जो भी लोग उसके साथ रिलेटेड है। फिर आपको टॉक टू पीपल अबाउट योर आइडिया एंड पैशन, वो जो भी लोग रहते हैं उनके साथ साथ आपको आइडिया और पैशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टर के लिए भी बात करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर के लिए भी बात करनी पड़ेगी, आपको फेल्यूर क्यों हो गए हैं उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी। डिफरेंट लोगों से आपको बहुत सारे उस आइडिया और पैशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही पेशेंस के साथ आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। खुद के ऊपर बिलीव जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी काइंड ऑफ एन, आप कोई भी फील्ड में अगर आपका अपना करियर करना चाहोगे, जॉब में हो या तो फिर बिजनेस में हो, स्टार्टअप हो या कुछ नया कुछ करना चाहते हो, उसी हर एक जगह पे आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट, एक तो प्राइम मोटिव तो हर एक बिजनेस का यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, बट एट द सेम टाइम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर और क्लाइंट आपके जो भी रहेंगे उनको बेनिफिट भी, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। उनका अगर बेनिफिट होता है तो ही आपका प्रॉफिट होता है। टिल दैट टाइम अगर वो बेनिफिट नहीं होता है तो आपका बेनिफिट कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी जो करंट जो प्रोडक्ट आप जहां पे भी जा रहे हो, जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, जो सर्विस देने वाले हो, या तो फिर प्रोसेस लॉन्च करने वाले हो, आपके दिमाग में आइडिया है, उसके जो करंट जो प्रोवाइडर है उसमें उनके क्या फ्लॉज है। जैसे कि अगर कोई अगर हम लोग कुछ इनोवेटिव एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी रहेगा, एक कार ओके नाम की एक छोटा सा सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, नॉट मोर देन 5 साल से पुराना नहीं है एक प्लेटफॉर्म। कार ओके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर द रिपेयर्स एंड फॉर द सर्विस ऑफ 4 व्हीलर्स, दैट इज फॉर कार के लिए एक रिपेयर्स एंड सर्विस की एक एप्लीकेशन है, ऐप है, आप सिस्टम पे दे सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, वेबसाइट है उनका, वहाँ पे जाके आप उनकी सर्विस यूज कर सकते हो। इधर सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आज मगर मेरे गाड़ी में कुछ कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम हो गया, किसी जाके पुणे में, मुंबई में, हम कोई भी मल्टी बड़े शहरों में जाके देखते हो, मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, इट इज़ वेरी बहुत आसानी से कुछ स्क्रैच आ जाता है उस गाड़ी में। और उस चीज़ के लिए अगर मैं लोगों ने, जो कार ओके का जो फाउंडर है, उन्होंने देखा कि उस छोटे से स्क्रैच के लिए सर्विस सेंटर में जाना, इंश्योरेंस क्लेम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके लिए कभी कभी समटाइम्स वो 7 दिन लगते हैं गाड़ी को वहीं पे शोरूम में रखो, फिर उसके साथ उसको रिपेयर करो। छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें इनके पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही कुछ छोटे छोटे गैरेजेस है, उनके पास अच्छे क्लाइंट नहीं आते, अच्छे कस्टमर्स नहीं आते। ये चीज़ उन्होंने देखा और एक कार ओके नाम का एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके बीच में अभी कार ओके इज एन प्लेटफॉर्म विच गिव्स सर्विस ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एन 4 व्हीलर्स। अभी इसमें क्या है, डिफरेंट गैरेजेस जो है ना वो रजिस्टर्ड रहते हैं, आपकी कार देखी जाती है। कार ओके का एक कुछ उनके मैकेनिक्स है, उनके पास उनका अपना खुद का कोई भी गैरेज नहीं है, वो दूसरे गैरेजेस की सर्विस हायर करते हैं। अगर आपके सपोज कुछ छोटा मोटा स्क्रैच आया आपकी गाड़ी में, आपने कार ओके से सर्विस मांगी, उनका मैकेनिक आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा और आपको कोटेशन देगा डिफरेंट इससे। तो मेरे टाइम्स मैंने खुद ने उसकी सर्विस ली है, मैंने देखा है कि उनके जो कोटेशन मिलते हैं, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत सस्ते में हमें सर्विस मिल जाती है। मेनी टाइम्स 1500 में हमें उनकी सर्विस मिल जाती है। और स्क्रैचेस, वो जो गाड़ी का जो स्क्रैच वगैरह कॉस्मेटिक चेंजेस है वो हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो ठीक से बन जाती है। अगर ये मैं वही चीज़ अगर मैं शोरूम में लेके जाता हूँ
तो उसको मेनी टाइम्स 9,000 10,000 का कोटेशन आ जाता है, वो चीज़ मुझे 1,000-1,500 में मिल जाती है। और उसका लिए जो भी उनका चार्जेस रहेगा वो आप उनके गैरेजेस से, मतलब उनके जो सर्विस प्रोवाइडर उनसे वो उनके इन काइंड ऑफ एन कमीशन वो प्रोक्योर कर लेते, उनसे वो मिल जाता है। और मुझे क्या होता है, मुझे 1,000-1,500 में बेस्ट सर्विस अवेलेबल होती है। सो देन व्हाई आई टू गो टू द शोरूम, वहाँ पे जाके इंश्योरेंस क्लेम करो, 7 दिन गाड़ी को रखो। ये जो फ्लॉ है, करंट फ्लॉ जो होता है उस सर्विस में, वो आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ साथ वो मार्केट में लॉन्च किया है। एंड दैट थिंग इज वो मार्केट में आती है और उसके साथ साथ बेटर सर्विस, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी सेटिस्फाइड है, एंड एवरीवन इज इन अ विन विन सिचुएशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दूसरी जो है रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो आपको मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसका startupindia.gov.in के साइट पे आप बहुत इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस कोई भी स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट रजिस्टरिंग इट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें हम लोग देखेंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम उसका रजिस्टर नहीं करेंगे खुद को। दो यू आर हन स्टार्टअप, बट अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो उसके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। दैट इज इजीली यू कैन डू ऑनलाइन, नो नीड टू गो टू एनी किसी ऑफिस में जाना आपको ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद सैम्पल एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। हम अभी देखते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक बात मैं भूल गया बताना, एक नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड फर्म और एक स्टार्टअप बिजनेस में थोड़ा और एक डिफरेंस ऐसा हो जाता है कि स्टार्टअप का जो फाइनल गोल होता है मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है, या तो फिर टारगेट उसका ऐसा रहता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं वो तो उसका उनका टारगेट नहीं रहता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टार्टअप का टारगेट रहता है कि बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, ये कुछ नया जो आइडिया है वो बड़ा रंग रूप ले ले, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। अगर स्टार्टअप के अंडर अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट लोगों को लगता है वो है इनकम टैक्स रेट फॉर 3 years एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। तो आप बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो पहले 3 साल तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो ये इनकम टैक्स रिलीफ जो है 3 साल के लिए दिया गया है, और ये जो 3 साल का रिलीफ जो है वो आप चूज कर सकते हो इन एनी 7 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। जब से आपने इनकॉर्पोरेट किया है उसके बाद 7 सालों तक आप 3 साल का रिलीफ जो है इनकम टैक्स में रिलीफ ले सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी जब बिजनेस चालू करते हैं तो पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो है ना वो प्रॉफिट में आता ही नहीं है, तो कहाँ इनकम टैक्स भरने को आता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर पहले 4 साल अगर आपको लॉस है तो कोई बात नहीं, अगले 3 साल जब आपको प्रॉफिट होगा उस वक्त आप इनकम टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हो। देयर विल बी नो इनकम टैक्स एंड for this startup. That's a very good incentives given by the government and exemption from capital gain. उनको exemption भी दिया गया है capital gain tax से। वो अपने कुछ asset बेचते हैं जिसको capital gain tax लगता है, तो उसके लिए भी exemption किया है। अगर कोई स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड हुआ है उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी कुछ कैपिटल गेन की टैक्स की लायबिलिटी है, और वो अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया गया है कैपिटल गेन टैक्स से। ये भी एक बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है स्टार्टअप इंडिया में। एक नेक्स्ट बेनिफिट जो दिया गया है उनको लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ जो है ना उसके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसके प्रॉपर
कंप्लायंस तो करना पड़ेगा, बट वो कंप्लायंस जो है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के फॉर्म में होता है। कहीं जाके लेबर ऑफिस में या एनवायरमेंटल ऑफिस में जाकर आपको रजिस्टर्ड करना, वहां पे ऐसे बोला जाता है ना कि बिकॉज ऑफ द लाइसेंस राज देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस करने में तकलीफ होती है। स्टार्टअप में क्या होता है, बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंप्लाई द ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो उसको बहुत इजी कर दिया है स्टार्टअप में, उनको सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है, खुद सर्टिफाई करना है कि मैं लेबर लॉ जो फॉलो करूंगा, एनवायरमेंटल लॉ जो है वो खुद इंप्लीमेंट करूंगा। देयर विल बी नो इंस्पेक्शन। लेबर और एनवायरमेंट के कोई अगर सीरियस बात नहीं है तो टिल दैट टाइम लेबर डिपार्टमेंट से या तो फिर एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से आपके यहाँ पे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएगा। वो जो है एक बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी। पेटेंट फीस में जो है ना 80% रिबेट दिया है। मेनी टाइम्स पेटेंट जब अप्लाई करते हैं तो 30-35,000 फीस रहती है उसकी, उसमें उसके अंडर उसको पेटेंट फी में 80% का जो है वो रिबेट दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। 50% ट्रेडमार्क फीस तो वैसे यूजुअली ज़्यादा नहीं रहती, 5,000-7,000 तक उसकी ट्रेडमार्क फी रहती है, डिपेंड्स ऑन विच ट्रेडमार्क यू आर अप्लाई, लेकिन उसमें भी 50% का रिबेट दिया गया है स्टार्टअप पॉलिसी में। बेनिफिट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है स्टार्टअप के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ भी परचेज करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो उनको टेंडर प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। और टेंडर में ऐसा होता है कि उनका टर्नओवर जो है ना एक कंडीशंस रहती है, जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, कुछ कंडीशंस रहती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एन टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट दे आर अवॉर्डिंग। ये भी कंडीशन रहती कि वो 10 साल पुराना बिजनेस फॉर्म चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन अगर वो स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको ये कंडीशन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे स्टार्टअप पॉलिसी में गवर्नमेंट ने दिया है, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट के भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। जो स्टार्टअप है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अमेजॉन वगैरह है नॉर्मल कस्टमर के लिए, वैसे ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, अगर उनको कुछ परचेज करना है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऐसा इस नाम का एक पोर्टल बनाएगा। इट इज सिमिलर लाइक एन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट यू कैन से, और वहाँ से एनी गवर्नमेंट को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट करना ही चाहिए। विदाउट जेम पोर्टल दे कैनॉट परचेज। उनको अगर कुछ परचेज करना है तो फिर टेंडरिंग से ही करना पड़ता है एनी गवर्नमेंट ऑफिसर के। दैट इज एन परचेज प्रोसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैव एलोकेटेड 10,000 करोड़ फॉर स्टार्टअप, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको फंडिंग देने के लिए फ्रॉम डिफरेंट थिंग। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो है उन्होंने एक अलग फंड बनाया है ऑन द इंस्ट्रक्शन और द ऑन एज अ पॉलिसी मैटर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो भी फंड देते हैं, फंड एलोकेट करते हैं, प्रोवाइड करती है स्टार्टअप रन करने के लिए, स्टार्टअप बढ़ाने के लिए। मेंटर फैसिलिटी एक दिया गया है। मेंटर फैसिलिटी, आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो वहाँ पे आप लीगल या तो फिर आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, आपको मार्केट फाइंड आउट करने में कुछ डिफिकल्टी आती है, आपको कस्टमर के साथ कुछ डिफिकल्टी आता है, तो एक मेंटर फैसिलिटी अवेलेबल कर दिया है startupindia.gov.in के पोर्टल पे, जिसके साथ साथ आपको मेंटर भी अवेलेबल हो जाएगा। The one important benefit given by this under startup policy is credit guarantee. आप जो भी स्टार्टअप बिजनेस कोई भी अगर लोन लेता है तो गवर्नमेंट विल गारंटी। कोई भी बैंक के पास जाते हो तो वो गारंटी मांगते हैं कि आपको हम लोन देते हैं, लेकिन आपको लोन देते हैं तो उसकी गारंटी क्या है, तो वो गारंटी जो है ना गवर्नमेंट देगा, जिसके अंडर आपको बैंक जो है ना इजीली लोन दे सकती है। These are the few examples of innovation. Many of the innovation you might be knowing. आप देख सकते हैं एप्पल, उबर, एयरबीएनबी, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप,
ये जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख सकते हो, ये डिफरेंट इनोवेशन के कंसेप्ट्स हैं जिन्होंने मतलब बहुत ही मार्केट को चेंज किया गया है. We can say because of all these things, we say it is an IT revolution that is happening right now. इन सब चीजों की वजह से इंडिया में भी है, ये तो वर्ल्ड वाइड है. बाकी हम इंडिया में अगर देखते हैं तो डुम्जो जो है ना, वो ईजिंग डिलीवरी. हमें कुछ भी, अगर मुझे पूना में कुछ मेरे फ्रेंड के पास, मेरे ऑफिस में, मेरे रिलेटिव के पास कुछ भी डिलीवरी अगर भेजना है एंड आई एम बिजी, तो आपको पता है कि डुम्जो की मैं सर्विस ले सकता हूँ, वो मेरे लिए डिलीवरी कर सकते हैं. थर्ड इज कार ओके. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार रिपेयर और सर्विस में वो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो इनोवेशन का. वेरी गुड थिंग बाय एन कंसेप्ट, बाय गिविंग एन प्लेटफॉर्म, कस्टमर्स एंड सेलर्स आर बोथ बेनिफिटेड. एक बायजूस का नाम भी आपने हर एक ने सुना होगा. ये पैंडेमिक सिचुएशन में जब स्कूल वगैरह बंद है, फिजिकल ट्यूशन क्लासेस बंद है, उस वक्त तो ये बायजूस का जो है ना लर्निंग ऐप और ऑनलाइन कोचिंग का हम लोग बोल सकते हैं. ये ऑनलाइन कोचिंग जो है ना बायजूस की तरफ से जो मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस हम बोल सकते हैं जिनको मिल गया है ये कोचिंग में. These are the few examples of innovation. और भी बहुत सारे हैं, आप many people you are knowing it. अब एक important part आता है, जो आता है इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे. फंड्स मतलब ऐसे बोला जाता है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से लाए. पैसे जो है ना, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू अ बिजनेस. और बहुत बार विदाउट बिकॉज लैक ऑफ फंड बिजनेस जो है ना ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो बिजनेस के लिए फंड कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए ये कुछ बहुत अलग अलग मतलब मैंने जो वर्ड यूज किए हैं, बूटस्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, ऐसे कुछ वर्ड यूज किए हैं, वो हम लोग थोड़े से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. वर्ड जो है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट है समझने को, लेकिन उसकी कंसेप्ट बहुत सिंपल है. हमें कहाँ से मिल सकते हैं, क्या है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं. बूटस्ट्रैपिंग योर स्टार्टअप बिजनेस. बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है कि हमारे खुद की इन्वेस्टमेंट, हमारे सेविंग से इन्वेस्टमेंट, हमारे फैमिली से इन्वेस्टमेंट, हमारे फ्रेंड के साथ से हमने कुछ पैसे लेते हैं, उनसे उधार लेते हैं, और वो जो होता है बूटस्ट्रैपिंग. मतलब मेरा खुद का पैसा मेरे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ. इनिशियली जब आप कुछ चालू करते हैं तो खुद के पैसे रहते हैं, उसको बोला जाता है फंडिंग. मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इज बूटस्ट्रैपिंग, खुद के पैसे या तो फैमिली और फ्रेंड के पैसे. दूसरा ऑप्शन है क्राउड फंडिंग. ये जो ऑप्शन है क्राउड फंडिंग, मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं. कुछ आप जो है ना, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हो आपके बिजनेस की क्या आइडिया है और आपको कितना रिक्वायरमेंट है, और फिर उनको स्मॉल स्टेक, बहुत स्मॉल स्टेक्स देके आप जो है फंड जो है कलेक्ट कर सकते हो. क्राउड फंडिंग नाम से पता चलता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक पार्ट से नहीं आता, एक पर्सन से नहीं आता, एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता, तो क्राउड से आता है. अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया, बहुत अच्छा अगर आपका स्टार्टअप का आइडिया है, तो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं. ये जो है ना कुछ साइट्स के नाम, ये जो प्रेजेंटेशन मैं शेयर करूंगा येरावार सर के साथ, यू कैन कलेक्ट इट. ये जो डिफरेंट साइट्स है, यहाँ पे आप क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां से क्राउड फंडिंग हो सकती है. दैट कुड बी वन सोर्स ऑफ एन फंडिंग. लेकिन उसके लिए स्मॉल फंड्स एंड स्मॉल स्टेक्स आपको उनको देना पड़ेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एंजल इन्वेस्टमेंट. आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि एंजल इन्वेस्टमेंट से हमें बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या है, जो आपका बिजनेस अभी जो स्टार्टअप जो है अभी चालू हो रहा है, उसकी आइडिया, उसके कंसेप्ट देख के कोई जो इन्वेस्टर जो रहता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो उसके स्टेक्स आपको मांगेगा. उसमें आपको उनको कुछ इक्विटी बेचनी पड़ेगी, उसमें आपको कुछ शेयर जो है ना उस बिजनेस को वो देना पड़ेगा. एंजल इन्वेस्टमेंट क्या करता है, आपको थोड़ा सा मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा टेक्निकल गाइड भी प्रोवाइड करते हैं,
आप जब नए रहते हैं, स्टार्टअप जब चालू होते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ जो बातें आप नहीं सीखे होते हैं वो आपको एंजल इन्वेस्टर के साथ सीखने मिलती है। मेनी टाइम्स वो जो अमाउंट रहती है वो सब्सटेंशियली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। क्राउड फंडिंग में बहुत स्मॉल अमाउंट रहती है, एंजल इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो थोड़े से सब्सटेंशियल ज़्यादा रहती है और उनके स्टेक्स भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। वहाँ से भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपका जो आइडिया रहेगा, आपका जो स्टार्टअप रहेगा, उसके प्लान बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। उसमें उसको इन्वेस्टर को दिखना चाहिए कि मेरे पैसे यहाँ पे ग्रो होने चाहिए। कोई भी, देखो एक बात सिंपल होती है, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन जो है ना कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो ही विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न फ्रॉम इट। विदाउट एक्सपेक्टेशन नोबडी विल इन्वेस्ट। अगर आपको उसको कुछ बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर को तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो दीज आर द एंजल इन्वेस्टमेंट। आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ पैशन है, तो आप उनके साथ वो आप उन इन्वेस्टर के पास जा सकते हो एंड दैट इन्वेस्टर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। वो आपके बिजनेस के बारे में देखेंगे, आप हो सकता है आपके यहाँ पे विजिट भी करेंगे, वो देखते हैं। अगर उनको उसमें कुछ दम लगता है, तो उसको उनको लगता है कि अरे यार हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो यहाँ से मुझे कुछ बहुत ग्रो हो सकता है, ये बिजनेस, ये जो स्टार्टअप है बहुत ग्रो होने वाला है एंड मेरा पैसा भी डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसे भी हो सकता है, देन दैट इन्वेस्टर विल कम टू यू एंड वो इन्वेस्ट कर सकता है। और कुछ जो इन्वेस्टर साइट्स है इंडिया में, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वो भी आप ले सकते हो, देख सकते हो। ये दूसरा आगे का कंसेप्ट है, दैट इज वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। जब आपका स्टार्टअप थोड़ा सा आगे चला जाता है, एंजल इन्वेस्टमेंट आ जाती है आपका, फिर आपको उसका बिजनेस जो है ग्रो करना रहता है। तो अगर सपोज आप पूना में बिजनेस करते हो, पूना में आपका अच्छा चल रहा है, एक एंजल इन्वेस्टर ने आपके पास इन्वेस्ट किया है और उसको आपने कुछ उसके इक्विटीज भी दे दिए गए, 10%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू हिज इन्वेस्टमेंट, आपने उसका शेयर उसको एलोकेट किया है। देन उसके बाद आपको उसको जो बिजनेस को जो है ना ग्रो करना है, आपको एक्सपांड करना है। आज आप एक सिटी में हो, कल जाके आपको 2 साल के बाद आपको ऐसा पता चलता है कि अरे यार ये अच्छा चल रहा है एंड आई शुड स्टार्ट दिस बिजनेस इन 10 मोर सिटीज, 15 मोर सिटीज, एक्सपोर्ट करना चाहिए, फॉरेन कंट्री में उसका ये होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे भी मैं बिजनेस चालू कर सकता। ऐसी सब सिचुएशंस में आपको हो सकता है और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वक्त आपको वेंचर कैपिटल भी मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए। और वेंचर कैपिटल जो है वो आपको टेक्निकल नो हाउ, जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट में आपको मेंटर भी रहते हैं, आपको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, वैसे वेंचर कैपिटल में ये नहीं रहता है कि आपको प्रोवाइड नहीं करते, आपके डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं करते, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उनको भी आपको उनका शेयर जो है ना इक्विटी में देना पड़ता है, देन ओनली दे विल इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट टाइप ऑफ फंड इज कॉल्ड एज एन वेंचर कैपिटल। इसके बाद जो है ना ये कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स रहते हैं, जिसे ये एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर्स क्या रहते हैं, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म एक दिया जाता है, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ जहाँ पे आपको एक सिर्फ आप आइडिया लेके जाओ, उसके बाद आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फंड कहाँ से मिल सकता है आपको, उसको कैसे प्लान करना चाहिए, इस तरह का पूरा गाइडेंस आपको एक थोड़े से ऑन द पेमेंट ऑफ सम स्मॉल अमाउंट आप उनके वो सर्विसेज ले सकते हो। ये प्राइवेट इंक्यूबेटर्स एंड प्राइवेट एक्सेलरेटर्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स और गवर्नमेंट एक्सेलरेटर्स भी अवेलेबल है इन मेनी सिटीज। वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो, कोवर्किंग स्पेसेस रहते हैं, वहाँ पे जाके आपको ये फंड्स भी वहाँ से मिल सकता है, आपको गाइडेंस भी मिल सकता है, मेंटरशिप भी मिल सकती है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द इंक्यूबेटर्स, अगर आप कुछ नया आइडिया लेके जाते हो तो। नेक्स्ट वे ऑफ फंड रेजिंग इज रेजिंग फंड बाय विनिंग कॉन्टेस्ट। जो डिफरेंट इंडिया में जो स्टार्टअप के लिए कंपटीशन कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें आप आपकी आइडियाज़ वहाँ पे दिखा, अगर वो कॉन्टेस्ट जीत के भी आपको मिल सकते हैं। एक्चुअली इनफैक्ट क्या होता है कि अगर वो कॉन्टेस्ट आप अगर जीतते हो तो बहुत सारे इन्वेस्टर का भी आपकी तरफ ध्यान पड़ता है और वो आपके यहाँ पे आपके स्टार्टअप में
इन्वेस्ट करने को भी तैयार होते हैं। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ फंडिंग वी कैन से। अभी जो बाकी जो है ना वो कन्वेंशनल सोर्सेस है जो आप आपके स्टार्टअप के लिए ले सकते हो, जैसे कि रेज मनी थ्रू बैंक लोन, बैंक के पास जाके आप लोन ले सकते हो। अभी ये समझना बहुत ज़रूरी होता है फंड्स जब हम रेज करते हैं तो उसमें कि हमें कौन सा लेना चाहिए, मतलब हमें एंजल से इन्वेस्टर लेना चाहिए या तो फिर मार्केट से लेना चाहिए या बैंक से लोन लेना चाहिए। जब आपको रिस्क कम रहता है और आपको प्रॉफिट मालूम है कि पक्का आपको होने वाला है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ ऑर्डर मिल जाता है। कंसिडर कर लो आपको एक 10 लाख सोलार में आप कुछ काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 10 लाख का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और उस वक्त आप मतलब किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, उस वक्त आपको बिजनेस जो है ना पक्का है। इन दैट सिचुएशन वन शुड गो टू बैंक और वहां से लोन ले सकते हो, क्योंकि बैंक का लोन लेना और प्राइवेट से लोन लेना ये थोड़े दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बैंक के लोन लेने के बाद क्या होता है कि राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आपका जो है EMI चालू हो जाता है, आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट मंथ से देना पड़ता है। प्राइवेट इन्वेस्टर से जब आप जाते हो तो वो इमिडिएटली आपको ये नहीं मांगता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मांगता है, बट बैंक जो है ना लोन मांगता है। लेकिन बैंक उसके साथ साथ ये भी मांगता है कि आपको फिक्स उसका जो है ना उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको 50% भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बैंक को कितना लोन इंटरेस्ट देना है, 9%, 10%, 15%, जो भी आपने बैंक के साथ डिसाइड किया उसके साथ ही देना पड़ता है। आपको लॉस हो प्रॉफिट हो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर के साथ ऐसा होता है कि आपको जो है कुछ इंटरेस्ट, जो फिक्स इंटरेस्ट तो नहीं देते हो उसमें और इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते हो, तो दोनों के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि कौन से सिचुएशन में मुझे लोन लेना है और कौन से सिचुएशन में मुझे इन्वेस्टर के पास जाना है। द नेक्स्ट वे इज जस्ट लाइक एन बैंक के तरह आप माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या NBFC से भी ले सकते हो। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल कंपनीज, उनके पास से भी आप लोन जो है ना वो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इज गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है ना, उससे भी आपको स्टार्टअप कैपिटल जो है वो मिल सकता है। फिर अदर जो है ना वो अदर क्विक वेज आर प्रोडक्ट प्री सेल। प्रोडक्ट को पहले से आप मतलब प्री सेल आपको जो एडवांस वगैरह मिलता है। समटाइम सपोज अगर आप कुछ 10 लाख ऐसे, जैसे हमने अभी देखा सोलार का कुछ ऑर्डर है, उसमें सोलार में भी ऐसा होता है कि उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है। 50-60% इज जो उसकी मटेरियल कॉस्ट होती है। और जब भी आपको परचेज करना है, सपोज 10 लाख का ऑर्डर है, 10 लाख का आपके पास ऑर्डर है और 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, आप तो कस्टमर से ही आपके वो ले सकते हैं एडवांस वगैरह और वहाँ से आपको फंडिंग मिल सकते हैं। समटाइम्स सेल ऑफ एसेट्स, आपके कुछ एसेट्स वगैरह है तो वो सेल करके भी आप उसको फंड रेज कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन, एक स्मॉल ऑप्शन रहता है क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं, उससे भी आप आपके रनिंग कॉस्ट के लिए, रनिंग कैपिटल जो लगता है वो भी आप प्रोक्योर कर सकते हो फंडिंग का। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। ये हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप में फाइनेंसिंग साइकिल कैसे होती है। इसमें आप देखोगे टाइम के साथ साथ रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। रेवेन्यू इनिशियल पीरियड में तो कुछ रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता, इनफैक्ट प्रॉब्लम ही रहता है उसमें, नो रेवेन्यू इज जनरेटेड। धीरे धीरे उसमें फिर उसी वक्त जब आप इन्वेस्ट करते रहते हो तब सीड कैपिटल मतलब जो आप बिजनेस जो आप बना रहे हो, फाउंडेशन जो है उसमें जब आपको जो कैपिटल लगता है वो जो है वो सीड कैपिटल जो है वो आपको एंजल्स के आता है। एंजल इन्वेस्टर हमने जो देखा वो से आता है, या तो फिर FFF बूटस्ट्रैपिंग भी बोलते हैं उसको। FFF उसको मतलब ऐसे भी कहा जाता है, FFF मतलब फैमिली फ्रेंड्स एंड फूल इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप इन दिस स्टेज, FFF ऐसे कहा जाता है। देन जब ब्रेक इवन हो जाता है और जब बिजनेस ग्रो होने लगता है तो आप देख सकते हैं इसका स्लोप कैसे बढ़ रहा है। इनिशियल पार्ट जब उनका बिजनेस एक बार एस्टेब्लिश होता है उसके बाद जो बूस्ट होता है बिजनेस
उसके बाद जो है ना, उसके बाद भी आपको फंड्स की जरूरत रहती है। उसके बाद आपको वर्चुअल ये वीसीज अवेलेबल हो सकते हैं, एक्विजिशन, मर्जर से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कर सकते हैं और फिर आपको फंड्स वो अवेलेबल हो सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट या तो फिर एक्विजिशन, मर्जर, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इससे हो सकता है। और उसके बाद जो है ना, बिजनेस एक बार जाके वो स्टार्टअप जाके स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद भी फंड्स की अगर आपको फिर जरूरत पड़ती है तो आप आईपीओ ला सकते हो। उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो। उसके साथ साथ आप पब्लिक में जाते हो और उस पब्लिक से आप वो फंड्स जो है वो रेज कर सकते हो। दीज आर द फाइनेंसिंग जो फंड्स है, इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इथिकल इश्यूज जो है ना, वो कौन से हैं जो हमें देखने चाहिए कोई भी स्टार्टअप के लिए। द पर्पज ऑफ ए स्टार्टअप इज टू अर्न प्रॉफिट, बट व्हाइल अर्निंग प्रॉफिट एथिक्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कोई भी अगर आपको कोई अच्छा स्टार्टअप जो है ना रियली अगर सही में बड़ा करना है, तो एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम ये बिजनेस जो है ना, वो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस ये ग्रो नहीं हो सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता, वो जायंट नहीं बन सकता है। उसके लिए कुछ एथिक्स जो है वो फॉलो करने ही चाहिए। पहला क्या है, ड्यूटीज टुवर्ड्स कस्टमर्स। हमारे कुछ ड्यूटीज रहते हैं, हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं उनके साथ ड्यूटीज रहते हैं। जैसे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, हमारे सर्विस का, उनको टाइम टू टाइम उनको सर्विस हमारी पहुंचनी चाहिए। मेरे टाइम्स क्या होता है, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हो लेकिन वो टाइम पे नहीं अगर प्रोवाइड करते, अगर वो प्रोडक्ट है आप बेच रहे हो, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो उस चीज का, उस प्रोडक्ट का कस्टमर को कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो उनको टाइमली और अप्रोप्रिएटली उसको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस अगर दी जाती है, कस्टमर अगर सेटिस्फाई होते, तो आपको भी, आपके लिए भी वो ग्रोथ के लिए ग्रोथ हो सकता है। ड्यूटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, आपके जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे उनके टुवर्ड्स भी आपके एम्प्लॉयज, उनको टाइम टू टाइम सैलरी, उनको अच्छा काम करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर अगर आप प्रोवाइड करते हो, तो एम्प्लॉयज भी जो है ना वो पूरा मन लगा के वो काम करेंगे, वो अपना पूरा आउटपुट दे सकते हैं। लेबर लॉ का इंस्पेक्शन नहीं होता, इसका मतलब आप उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो एथिकल इश्यूज है, एथिकल इश्यूज है, उसको आपको देखना चाहिए। एम्प्लॉयज की तरफ आपकी जो ड्यूटीज हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज ड्यूटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, जैसे हमने पहले देखा कि एनवायरमेंटल लॉ के लिए सिर्फ आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है, वहां पे जाके आपको कोई लाइसेंस या तो फिर कोई परमिट ऐसे निकालना नहीं है। बट कुछ हमारा एनवायरनमेंट ना खराब हो, हमारे क्लाइमेट को ना डैमेज हो, इसके लिए जो भी ड्यूटीज है वो जो भी करना चाहिए हमें, वो चीजें करनी चाहिए। ड्यूटी टुवर्ड्स स्टार्टअप, एम्प्लॉय जो रहते हैं ना, the employees in a startup should prioritize the interest of a startup rather than their personal interest. All the employees should work together for the growth of the startup. जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी भी एक ड्यूटी बनती है स्टार्टअप के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा स्टार्टअप का जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्टार्टअप ग्रो होता है तो एम्प्लॉय भी ग्रो होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटीज के लिए हमारे पास जो भी ड्यूटीज हैं वो भी हम फॉलो करने चाहिए। इफ अगर कोई अच्छा एथिकल वे से अगर कुछ हम बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन ग्रो, बहुत बड़ा बन सकता है। अगर एथिक्स से अगर नहीं जाते हैं तो बिजनेस जो है वो जायंट नहीं बन सकता, वो ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी एक जगह पे जाके उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है अगर इफ वी डोंट फॉलो द एथिकल वेज। इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज, जैसे हमने पहले देखा लेबर लॉज जो है आपको फॉलो तो नहीं करनी है, मतलब आपको डायरेक्ट कंप्लायंस तो नहीं, लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन इज द ओनली रिक्वायरमेंट इन फॉर द स्टार्टअप। और अगर आपको लेबर लॉ का डायरेक्ट कंप्लायंस नहीं करना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हो। इट शुड बी ethically you should follow that labor laws. The only thing is that no inspection जो है वो आपका नहीं होने वाला है 3 साल तक लेबर डिपार्टमेंट से।
These are the ethical issues. ये हमने इतना देखा है, हमने क्या क्या देखा है कि स्टार्टअप इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइव फॉर आवर ओन पैशन. हमारा जो पैशन है वो हमारे जो आइडिया है उसको अचीव करने के लिए, उससे लोगों को पहुंचाने के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दिया गया है. लॉट ऑफ सपोर्ट, गवर्नमेंट ने भी हमें लॉट ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड किया है अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी. फंड्स जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स जो है ना वो अवेलेबल है. लीगल इश्यूज जो है वो भी हम हैंडल कर सकते हैं. बहुत सारे इसमें बेनिफिट भी दिए गए हैं, वो भी हमने देखा. फिर हमने देखा कि वी कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू फॉर द बेटर कंट्री एंड फॉर द बेटर सर्विस टू द पीपल. हम स्टार्टअप के साथ ये कर सकते हैं और ये सब करते करते हम एक तरह का हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी अचीव कर सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ. मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी आपके क्वेश्चंस में है. सो मैं चाहूँगा आपके जो भी क्वेश्चंस है अगर आप मुझे पूछते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो क्वेश्चन से ही क्लियर हो सकती है. आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो या क्या, और अदरवाइज यू कैन unmute and you can ask the question also. Thank you, sir. If anyone is having any query, you can raise your hand. Yes, Tanmay, you can unmute yourself. Hello, sir. I'm Tanmay Jagtap. Sir, my question was, if we are starting initially, like it's just 3 to 4 months after starting up, so should we immediately go for registration process or should we wait for the process? Or is there any some like temporary for that? Okay, initially we do the temporary process and then we go for the actual registration. My suggestion तन्मय will be that कि आप जब भी आपकी आइडिया जो बात आइडिया या तो फिर आपके पास जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो भी आपको सर्विस देनी है, अगर उसको एक बार आइडिया जब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो, आपका एक डिसाइड हो जाता है कि इस तरह से मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं. एट दैट टाइम इनिशियल आपका जो प्रोटोटाइप वगैरह बनने के बाद आप लोगों के साथ सर्वे कर सकते हो. 10-50 पीपल के साथ आप सर्वे कर सकते हो, उनको क्या लगता है, वेदर इट इज़ वायबल, ये कुछ हो सकता है क्या, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो. वैसे तो लॉ आपको कुछ कहता नहीं है कि कौन से डेट पे आपको रजिस्टर करना चाहिए, कि स्टार्टअप उसको रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सा प्राइमरी हमारा प्रिपरेशन होने के बाद ही हम रजिस्टर्ड करते हैं, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव. Okay, sir, and to be on a safer side, should we go for trademark? Yes, मतलब if अगर आपका प्रोडक्ट कुछ यूनिक है और कुछ अगर ये आप अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो विद इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मे बी less than 10,000 rupees expenses you can register your product under a trademark. और उसमें भी आपको 50% का जो है ट्रेडमार्क फीस में स्टार्टअप के लिए उसको दिया गया है. ट्रेडमार्क डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ट्रेडमार्क. दैट इज माय सजेशन. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. यशवंत जी कुछ पूछना चाहते हैं? यू कैन आस्क यशवंत. Sir, actually, I use the licensed version of Microsoft Excel and I do the development in that. So, can I launch my product? Your voice is not very clear. Can somebody repeat? Hello, sir. Yes. I have licensed version of Microsoft Excel, MS Office Excel, and I do development in that. I do programming,
and I have some products developed. So can I launch them as products? Yeah, sure, definitely. If you are having licensed product and from purchase, you are means what is roughly what I can say. You are purchasing some software, you are making some amendment to it, and you are launching it to the market again. So I think it is this is allowed. Okay, sir. The only thing, just check when you are when we have purchased the licensed version of Microsoft Excel. Is there any condition to use it in producing some new product from that or not? I don't think so. Means any bar will be provided in that. You can definitely, I think, you can go ahead with that. Thank you, sir. Welcome. Any more questions? Actually, I am expecting some more questions. Amey Khedkar. Yes, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, actually, I have one startup and I had registered it under government MSME, Wow, wow, good. and I have subscribed for those government tenders that comes on the mail. Okay. However, I found it somewhere difficult to go for them. So, can you please suggest something for those tenders? For tenders, what is means? See, when you are filing the tenders. Yes, sir. I applied to few of them, Okay. but they were getting rejected. Okay. They see the awarding tender or awarding a contract is a procedure given in the government. उसके लिए दो चीजें जनरली देखी जाती है when the contract is awarded. टेंडर इज उसका टेंडर ओपन किया जाता है. टेंडर के साथ साथ आपका वो कौन सा एक्टिविटी मुझे पता नहीं, बट जनरली दो रहते हैं उसमें. एक फाइनेंशियल बिड रहता है, एक टेक्निकल बिड रहता है. पहले तो टेक्निकल बिड ओपन किया जाता है. इफ यू आर टेक्निकली अगर वायबल हो, टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ अगर फुलफिल हो सकते हो, देन योर फाइनेंशियल बिड विल बी ओपन. फाइनेंशियल बिड में जो भी लोवेस्ट कोट करता है, लोवेस्ट रेट में जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देना चाहता है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है. आप देख लो कि आप जो रेट कोट कर रहे हो कहीं ज़्यादा तो नहीं है मार्केट में जो दे रहे हैं उससे. अगर वैसा है कि अगर आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट में कि आपका रेट सबसे कम है और फिर भी काम जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी और को अवार्ड किया जा रहा है. ऐसा होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. तो आप देख लो आप जो रेट कोट कर रहे हो आपके टेंडर में, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव है क्या नहीं है, वो आप एक बार चेक कीजिए. Okay, sir. Thank you. वेलकम. someone else was there. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना था? Madhuri Karnik, yes, please. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. I would like to ask you that you have said 3 years exemption in income tax and Right. capital. Right. So when that startup is new, for first 3 years, it will be very difficult for a particular startup to Right. make. Definitely. Yes, to earn the profit. So how does this apply? 3 years exemption in. Yeah. I have mentioned 3 years exemption in income tax, but not first 3 years. It is 3 years exemption in first 7 years. और वो जो कौन से 3 साल लेने हैं वो आपको चूज करना है. Many a times what happens, पहले 2 साल 3 साल 4 साल your business or your startup will be in loss or it will not be making any profit. At that time if you are making loss, आपकी कुछ इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं रहेगी. लेकिन 5th ईयर 6th ईयर अगर आपकी 7th ईयर अगर आपके प्रॉफिट बनता है तो आप यू कैन क्लेम द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन. Okay, thank you. Yes, welcome. और कुछ क्वेश्चंस हैं? Chandra sir, Mitra sir is here. It's a very great session, sir.
very great sessions. We learned many new things actually. And Thank you, sir. Thank you. मैं आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से, और भी कुछ सेशन आपकी तरफ से चाहिए हमें इसके ऊपर, बेसिकली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द फंडिंग प्रोसेस मोर इलाबोरेटली एक्चुअली. So जरूर मैं थोड़ी सी परिचय करेंगे. And we know that in your heart MESCO is always there, and we just take that advantage also, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes. Hello. Sir, what is difference between SSI and startup? SSI and startup is a difference. SSI means small scale industries. The capital of organization when it is less than 100 crore, it is a small scale industries. SSI उसको जो बोला जाता है. और SSI जो होता है वो 10 साल पुराना भी हो सकता है, 20 years पुराना भी हो सकता है. और स्टार्टअप जो होता है जो एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके कोई बिजनेस चालू करता है उसको जो बोला जाता है स्टार्टअप. एंड फॉर दिस पर्पस और फॉर दिस पॉलिसी जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करता है उसको हम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं. और एसएसआई और स्टार्टअप में क्वाइट डिफरेंस है उसमें बहुत. लेकिन कोई एसएसआई हो सकता है जो स्टार्टअप भी हो सकता है. ऐसा कोई एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड भी कर सकता है. I mean, if any innovative idea is implemented, then that will be startup. Is it like that? Yeah. If something new, some innovative idea is implemented, तो उसको you can say that is an. और उसके साथ साथ वो रजिस्टर्ड, उसकी जो प्रोसीजर है वो अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं स्टार्टअप. जैसे कि हमने देखा कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो स्टार्टअप नहीं हो सकती इस पॉलिसी के अंडर. लेकिन कोई दूसरी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है. Okay. Yes, sir. Any more questions? Any more questions? Soham, you can ask your question. Yes, sir. So, I wanted to ask that can we convert from proprietorship to private limited? Yeah, sure. Definitely, you can convert proprietorship firm to an private limited firm. Sure. Yeah. So, if we convert from proprietorship to private limited, then will we be able to avail the benefits? Yeah, if you are if you are other conditions, if you are following it, if you fulfill other condition, then yeah, you can take the benefit of this startup policy. Definitely, you can take. Okay, sir. Thank you. Welcome. Yes, Abhishek. Hello, sir. I am Abhishek Markuskar. Sir, my question is, sir, is it compulsory to get the startup registered as private limited or public limited if the startup need funding? What does the investor prefer? Yeah. See, इन्वेस्टर तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है. कोई प्रोप्राइटर से भी फंड, प्रोप्राइटरशिप में भी फंड डाल सकता है, कोई पब्लिक लिमिटेड में भी डाल सकता है. बट अगर स्टार्टअप पॉलिसी के अंडर आपको रजिस्टर्ड करना है, जैसे कि हमने देखा है इनकम टैक्स के मेजर कुछ बेनिफिट है, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ के अंडर आपको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं. ये सब चीज़ों का अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हमें उस वक्त जो है स्टार्टअप पॉलिसी के अंडर हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. अगर आपने वहां पे रजिस्टर्ड कर दो, इन्वेस्टर तो कहीं पे भी आ सकते हैं. अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अच्छा प्लान है, अच्छी तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टर तो कहीं पे भी जाएगा. उसको तो इन्वेस्टर का पर्पस क्या है, उसको तो प्रॉफिट अर्न करना है, उसके पैसे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 50 टाइम्स करने, और उसके साथ साथ वो कुछ रिस्क भी लेने को तैयार है. वो तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप है क्या नहीं है उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है. हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज वहां पे मिल सकता है कि ये रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, क्योंकि उसको 3 साल तक इनकम टैक्स नहीं है. जब प्रॉफिट में आएगा उसको बाकी भी बेनिफिट है. तो वो इन्वेस्टर है वो एंगल से देख सकता है. लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब
स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करना जरूरी ही नहीं है, वो आपकी चॉइस है। सी द पॉलिसी इज, ये जो है गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ये कर सकता है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट बिजनेस जो है ना अपने कंट्री में, अपने नेशन में जो है अच्छा तरह से बिजनेस जो है ग्रो होना चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी जो है बनाया गया है। अगर अभी ये स्टार्टअप पॉलिसी नहीं थी, इसके पहले स्टार्टअप नहीं बनते थे क्या? बनते थे, उस वक्त भी स्टार्टअप तो बनते ही थे, नए नए बिजनेस आते ही थे। ऐसा नहीं कि पॉलिसी आने के बाद ही आती, अभी तो ये प्रमोट करने के लिए पॉलिसी लाई गई है। और उसके कुछ उसमें कुछ ये सो दैट इसमें बेनिफिट इस तरह से दिए गए हैं सो दैट पीपल हु आर कमिंग विद एन इनोवेटिव आइडिया, जो है वो अगर कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ सामने आ रहे, आगे आ रहे, तो उनको भी कुछ इंसेंटिव मिलनी चाहिए, उनको भी कुछ बेनिफिट होने चाहिए, उनको कम से कम तकलीफ हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। इसके लिए ये स्टार्टअप पॉलिसी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर, एनी न्यू बिजनेस इज अ स्टार्टअप, गृह उद्योग स्टार्टअप हो सकता है क्या? पार्डन, आप रिपीट कर सकते हो? Whether a new business is a startup and other is whether गृह उद्योग. गृह उद्योग, ओके ओके। Whether it comes under startup. नहीं, any business is not startup. Every business is not a startup. अगर कोई आप सपोज नॉर्मल मैं एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर रहा हूँ, तो वो जो है वो स्टार्टअप नहीं हो सकता है। स्टार्टअप फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस स्टार्टअप पॉलिसी, वो जो कैसे जैसे हमने देखे थे वो कंडीशन वो फुलफिल करना जरूरी है। वो सब कंडीशन फुलफिल होने के बाद एक कुछ इनोवेटिव आइडिया होनी चाहिए, जिसके साथ साथ आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो। बिजनेस कुड बी एनीथिंग। अगर आप सुपरमार्केट भी कुछ चलाते हो, ऑनलाइन सुपरमार्केट या तो फिर नॉर्मल सुपरमार्केट भी चलाते हो, लेकिन कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ आप उसमें आ रहे हो, जिसके साथ साथ कस्टमर्स भी बेनिफिट हो, आप भी बेनिफिट हो। और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है और उसके जो भी कंडीशन आप फुलफिल करते हो, तो देन यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर। बट नॉर्मल जो अगर एक कोई प्रोप्राइटरशिप ग्रोसरी स्टोर है या तो फिर सुपरमार्केट है, अगर वो आप करना चाहोगे तो दैट इज नॉट एन स्टार्टअप फॉर दिस पॉलिसी। एंड व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? Grow udyog, whether it comes under startup. Grow udyog, if that grow udyog is also coming with some innovative idea, that could also be an, I think, as per my opinion, I think it could be also a startup. Okay, thank you. So as you said, okay, Santosh, are you satisfied with the answer? Okay, thank you, sir. So as you said that proprietorship firm can be converted into LLP or private limited, private limited as well. So then after converting it into a private limited company, if I register it as a startup, would I get all the benefits of startups, the 3 years benefits and all? और we need to see वो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है कितना पुराना है, कैसे है। एक दूसरा कंडीशन उसमें जो है ना, रिकंस्ट्रक्शन या फिर स्प्लिट करके कोई अगर बिजनेस बनता है, तो एक कंडीशन वो है कि उसके साथ साथ अगर बनता है कोई कंपनी या तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो स्टार्टअप उसको कहाँ ले जा सकता है। वो एक दूसरी कंडीशन है उसमें। रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिट होके अगर कोई सपोज बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्प्लिट किया, उन्होंने बिजनेस को स्प्लिट किया और उसके साथ साथ कहा कि ये स्टार्टअप में जाएगा, ये स्टार्टअप में नहीं, उसको एलिजिबल नहीं, दैट ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिटेड ऑर्गेनाइजेशन इज नहीं होता। रिकंस्ट्रक्ट करके कोई है बहुत 25-30 ईयर्स बैक पुराना ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया तो उसको नहीं मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसके साथ साथ नया प्रोप्राइटरशिप फर्म है, 1-2 साल पुराना, 3 साल पुराना प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जो कि नए बिजनेस, नए आइडियाज के साथ सामने आने की कोशिश कर रहा है, बट वो इतना उसको रिस्पॉन्स नहीं है। यू गेट सम डिफरेंट जो है, आपको पार्टनर आप देखते हो वो भी खुद इसमें इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में कुछ डायरेक्टर्स दूसरे आप अटैच करते हो, जो भी वो भी कुछ उसमें उनकी इक्विटीज
डालते हैं और उसके साथ साथ अगर वो रजिस्टर्ड करते, बाकी कंडीशन फॉलो करते, तो आई थिंक उनको आप दे गेट एन बेनिफिट ऑफ अ स्टार्टअप. Okay, sir. With the same name as given to the proprietorship company, we can continue. It's if it is just a 1.5 or 2 years old proprietorship. Yeah. But see, the any private limited company will be having in the name of at the end they will be having name private limited. Right. जैसे कि आप अगर कोई समझ ले, आप ये लेते हो ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हो सुदर्शन एंटरप्राइजेस, उसके साथ साथ ये जो है ना प्राइवेट लिमिटेड फर्म, उनके साथ में आगे आता है सुदर्शन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, वो रहता ही रहता है उसमें. वो सुदर्शन एंटरप्राइजेस वो रहता नहीं है. एलएलपी में भी ऐसे होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है. सुदर्शन एंटरप्राइजेस अगर हम ये कंसीडर करते हैं, सुदर्शन एंटरप्राइजेस उसके आगे एलएलपी आ ही जाता है उसमें. Yes. Okay, thank you very much. Any other questions? हाँ, Soham. Yes, sir. So I wanted to ask that is there any particular like team who decides that this particular idea is innovative or in the startup policy team who approves for the benefits? Yeah, a startup. See, the registration of the startup is through the portal. It's a complete online procedure. You have to follow that online procedure only. And when you apply for the registration, वो कुछ few checks होते हैं गवर्नमेंट के अंडर, जो ऑफिसर्स और रहेंगे वहाँ पे, कोई वो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल अवॉर्ड यू द this registration number under the startup policy. Okay, so for example, for example, you take the example. For example, if we consider that big giants like Zomato and Swiggy, so both of them are startups, and both of them have the same idea. So Swiggy is probably old. No, Zomato is older than Swiggy. So how can Swiggy be considered as innovative idea? I think in my opinion, innovative idea means not only a new, नया idea जो है ना वो नहीं है. आप कोई किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी आप लॉन्च कर सकते हो. कॉम्पिटिटिव जो आपके साथ कोई कॉम्पिटिटर भी रहेगा, उनके वो आइडिया से के साथ भी आप आ सकते हो. ऐसे मुझे एज पर माय ओपिनियन वो आप डेफिनेटली आ सकते हो. आप उस स्टार्टअप पॉलिसी का आप बेनिफिट ले सकते हो. Okay, sure, thank you. और किसी को कुछ क्वेश्चंस था? आई थिंक संतोष. Do you have any question? Any other question? I think there are no questions. Sir, want to? Someone raised their hand. Yes, someone has raised their hand. Please unmute and ask the question. Yes, sir. As you told, the condition is that 100 crores, your turnover should be less than 100 crores, right? To register as a startup, right? But before, we registered as a startup, and within 3 to 4 years, suppose our that turnover exceeds that 100 crores. So still that all the benefits of startups remains as it is? No. Then you will not get the benefits of startup. Once you cross this limit of 100 crores, then you will not get the benefit of a startup.
So, sir, you told that about up to 7 years we can take that benefits of. Yes, up to 7 years you can take the benefits. But once you cross this limit of 100 crores, then you are not a startup for this policy purpose. Okay, even within the 7 years, right? Yeah, even within the 7 years. Yes, right. Okay, okay. Thank you. Any more questions? I think Rutuja, let's proceed. There are no more questions. Thank you, sir, for clearing the doubts. Now I would like to ask Dr. Yaravar, sir, to propose the vote of thanks. Yes, I am audible. Yes. Yes, sir, you are audible. Yes. Good afternoon, everyone. I am Dr. R.N. Yaravar. I am here to present the vote of thanks for today's session on how to plan for startup and legal and ethical steps. I would like to thank today's speaker, Mr. Vishal Chandigave sir, for enlightening us with their knowledge. Today's session was full of knowledge and interesting things. It gave a deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. Sir told us about the examples of innovation, legal and ethical steps that is to be considered for startup, registration of startup, government norms, scheme for startup. Important is fund for startups and tax benefits. Which one is really informative? I am pretty sure the precious knowledge that Chandigave sir gave us will definitely help. Once again, I would like to thank Chandigave sir for taking out time from their busy schedule and enlightening us. Thank you so much, sir. I would also like to thank Dr. A.J. Hake sir, Trustee Modern Education Society, Principal Dr. S.S. Sarode sir, Vice Principal Dr. M.P. Dale ma'am for giving permission to organizing this session. Thank you, sir and madam, for assisting in encouraging all of us. I would also like to thank IISc MESCO President Dr. N.F. Sheikh ma'am, Convener Dr. A.C. Mitra sir for motivating to organize this session. I would like to thank Mechanical HOD Dr. V.N. Chaugule sir, ENTC HOD Dr. Mane madam, Comp HOD Sheikh madam, and FE HOD Dr. D.S. Adkar sir for supporting this session. I would like to thank internship activity staff members, student coordinator, student member for working closely to mark this session with success. Last but not the least, I would like to thank all participants who took part in this session. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you so much for inviting me also. Sir, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, now I request, hello. Yes. Now I request everyone just to turn on your camera to have a group photo with all of you people. I request all attendees and the staff members. Yes, I can see 20 to 30 faces. Yeah. Yes, thank you, everyone. Yes. You can turn off your camera.
Yes, with higher authorities' permission, can we end the? Yes, yes, sir. Students, students, all students are there. 20 to 25 students were there. Okay. Yes, hello, sir. Yes, Professor, you can end. सगळ्या मुलांचं आलं ना? हो sir. Yes. Okay. Yes, sir. Can I end the meeting, sir? Sir, feedback form, about feedback form. Hello. Gajanan, you can make the announcement. Yes, about, yes. Yeah. All participants are requested to fill the feedback form, which we will share into the WhatsApp group. Thank you. Okay, thank you everyone.